तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला नवनियुक्त आईएएस अधिकारियों के बैच को संबोधित फिलहाल कर रहे हैं। संसद परिसर में आयोजन हो रहा है, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये नवनियुक्त आईएएस अधिकारियों के बैच को संबोधन करने से पहले उन्हें प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का स्वागत इस कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम है नवनियुक्त आईएएस अधिकारियों के बैच को संबोधित करने से जुड़ा हुआ। संसद परिसर में फिलहाल ये आयोजन चल रहा है। लोकसभा स्पीकर तस्वीरों में ओम बिरला आपको नजर आ रहे हैं और साथ ही मंच पर मौजूद हैं तमाम जो नए कैडर हैं उनसे जुड़े हुए और उच्च अधिकारी भी शॉल उड़ाकर प्रशस्ति पत्र देकर मोमेंटो देकर के स्वागत फिलहाल तमाम अतिथियों का किया जा रहा है इस कार्यक्रम में। इसके बाद में आईएएस अधिकारी जो कि अभी रिसेंटली नवनियुक्त हुए हैं उन अधिकारियों के बैच को संबोधित लोकसभा स्पीकर ओम बिरला करने वाले हैं। संसद परिसर में आयोजन और आयोजन की तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नवनियुक्त आईएएस अधिकारियों के बैच को संबोधित करने के लिए ये कार्यक्रम और प्रशिक्षण किस तरह से लिया जाए, जो कि प्रशिक्षण के बाद में अब जब ड्यूटीज सभी को असाइन होगी किस तरह से अपने रोल को निभाना है और तमाम वो सारी बातें जो कि सभी ब्यूरोक्रेट्स के लिए जानना जरूरी भी है, देश के हित में भी, उन तमाम बातों को संबोधित लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस कार्यक्रम के दौरान करेंगे। Sir, overall there are 181 IAS officers and 2 Royal Bhutan Civil Service officers who are a part of this entire learning experience. And so the first time we have a very unique batch with 1/3 of representation from women officers. So 34% our officer trainees are women and remaining are men. On the expected lines that 2/3 are from engineering background, sir. And almost half of them have, more than half of them have previous job experience, not with the government but outside government also. So that way it's a very lighted batch and also very learned batch that way, sir. The average age is around 27.2, which is coming down over a period of years, and we are seeing more youthful faces and more youthful batch in the recent times of the academy, sir. So before, this is basically the last leg of our Bharat Darshan, where the officer trainees have already traversed the lengths and breadths of the country. They have moved from Kashmir to Chennai, from Maharashtra to Arunachal, and have seen various things across country, including the research establishments, army establishments, navy establishments, and have also been seen closely life in tribal areas, the left-wing extremism parts, and also have been exposed to the tech sector in Bangalore and also the industrial sector in Chennai. And before that, the vision of the academy is now in alignment with the Mission Karmyogi, which has been launched by Honorable Prime Minister for the capacity building of the civil services. And based on those principal ethos of anonymity, ability and austerity, the academy is trying to forge a new breed of civil servants which will be seeing the country through this Amrit Kal. And proudly we announce this batch as the first Amrit Kal batch, and they have been trained into working with the different services. So the ethos of desilization, the interaction happening with cutting across with different sectors, with different services, has been the motto of the academy, and they have been aligned with that, sir. So this batch is unique in many ways and has been displaying its best of the things in the past 22 weeks that they have been with the academy, sir. Thank you, sir. Now request Honorable Speaker Lok Sabha Shri Om Birla ji to address the officers training. भारतीय प्रशासनिक सेवा के सभी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अधिकारीगण, रॉयल भूटान के सर्विस के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सभी
नौजवान साथियों, संसदीय पद्धतियों, प्रक्रियाओं, लोकतंत्र के सबसे बड़ी संस्था, जहां देश में कानून बनाया जाता है, जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, अभाव, चुनी हुई जनप्रतिनिधि जिसके माध्यम से सरकार को अपनी बात पहुंचाने का काम करते हैं। हमारे इस लोकतंत्र के सिस्टम में जब देश आजाद हुआ तो हमारे उस समय के नेताओं के सामने चुनौती थी कि हम शासन चलाने की कौन सी पद्धति को अपनाएं। विश्व के अंदर शासन करने की अलग अलग पद्धतियां हैं। उस समय के हमारे नेताओं का विजन, उनकी सोच, आजादी की लड़ाई लड़ने वाले महान कर्मयोगियों ने इस बात पर विचार किया कि दुनिया का सबसे बड़ा देश एक लंबी लड़ाई के बाद आजाद हुआ है, हम क्यों न इस शासन को जनता को समर्पित करें। इसलिए आपने जब संविधान पढ़ा तो आपने उस संविधान की मूल भावनाओं को देखा होगा कि शासन जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता द्वारा संचालित। और उस समय संविधान निर्माताओं ने शासन चलाने के लिए संसदीय लोकतंत्र पद्धति अपनाई। उसे समय बहुत कम देशों के अंदर संसदीय लोकतंत्र पद्धति थी। हमारे सामने चुनौती भी थी, लेकिन हमने दुनिया में साबित कर दिया है कि शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ अगर पद्धति है तो वो संसदीय लोकतंत्र पद्धति है। और आप देख रहे होंगे कि दुनिया के अधिकतम शासन इस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। दुनिया के अंदर लोकतंत्र की चर्चा हो रही है, लोकतंत्र में जनता की भागीदारी की चर्चा हो रही है। ये भारत के लोकतंत्र के इस संसदीय प्रणाली की सर्वश्रेष्ठ पद्धति और उसके अच्छे परिणाम का ही कारण है कि भारत का लोकतंत्र आज दुनिया को मार्गदर्शन दे रहा है। और इसीलिए शासन चलाते समय उस समय और बातों पर विचार होने के साथ साथ हमारे 3 स्तंभों पर शासन टिका हो: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और उन शासन के तीनों स्तंभों को अपने अपने संवैधानिक अधिकार दिए और ये अपेक्षा की कि तीनों स्तंभ अपनी अपनी सीमाओं में रहकर अपने कर्तव्यों और दायित्वों को निभाएं। और आज कई बार इस पर चर्चा होती है, संवाद होता है, और विशेष रूप से
जब आप प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं तो आपके सामने शासन चलाने की पद्धति, कार्यपालिका का अधिकार, उसका कर्तव्य, उसका दायित्व और संविधान की मूल भावनाओं की अपेक्षाओं को पालन करना, यह आपके लिए सबसे बड़ा दायित्व होगा। क्योंकि आप संसद में आए हैं तो आप आजादी के बाद और आजादी के पहले दोनों यात्राओं का भी अध्ययन करेंगे। आजादी के पहले ये केंद्रीय विधानसभा के रूप में, सेंट्रल असेंबली के रूप में जब बनी थी, उस समय किन किन बातों पर, किन किन कानूनों पर चर्चा होती थी,